چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میاں شہباز شریف سے آج ملاقات ہوئی۔ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی میڈیا سے بھی گفتگو۔ شہباز شریف بولے، پاکستان میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، حکومت نے اربوں کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پی ٹی آئی حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، حکومت کو گرانے کے لیے عوام اور اپوزیشن متحد ہیں۔ جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات دراصل سیاسی یتیموں کی ملاقات تھی۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے دونوں رہنماؤں کی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مولانا فضل الرحمان 30 سالہ اقتدار کا نشہ اترنے کے بعد پورے ملک میں مارے پھر رہے ہیں۔ مولانا کے تمام سیاسی رابطوں، لانگ مارچ، عدم اعتماد کی تحریکوں اور اے پی سی کا حاصل وصول صرف جگ ہنسائی نکلا۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کینہ، بغض اور اناد مولانا کو سکون کی نیند نہیں سونے دیتا۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ 2 سال پہلے میں نے مولانا کو اپنے سیاسی و معاشی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر معافی مانگنے کا مشورہ دیا تھا۔ ابھی بھی مولانا کے پاس مسلح بچھا کر توبہ استغفار کرنے کا وقت ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ غیر متحدہ اپوزیشن جان چکی ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اپوزیشن اے پی سی اور سیاسی گٹھ جوڑ کا لالی پاپ صرف اپنے ووٹرز کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ نواز شریف پلیٹلیٹس، شوگر، دل، گردے اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں۔ معالجین نے ہاسپٹل کے قریب رہائش رکھنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہائی کورٹ میں تازہ ترین میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں میاں محمد نواز شریف کو کورونا وبا کے باعث گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف پلیٹلیٹس، شوگر، دل، گردے اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے وکیل کی جانب سے جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا کورونا وبا کے دوران کہیں باہر نکلنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ورزش کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین سے مسلسل رابطے میں رہیں اور اپنی رہائش علاج گاہ کے قریب رکھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف دل کے مرض کی وجہ سے انتہائی خطرے میں ہیں اور دل کو خون سپلائی مناسب نہیں ہو رہی۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 4 دسمبر، 15 دسمبر، 13 جنوری 2019، 2020، 12 فروری، 18 فروری اور 28 اپریل کو بھی میڈیکل رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہیں۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ لاک ڈاؤن کا پہلا دن ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے لاہور چیمبر میں نیوز کانفرنس کر دی۔ صدر عرفان اقبال شیخ نے وزیر اعظم عمران خان سے 29 اور 30 جولائی 2 دن کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے تاجر قائدین اشرف بٹی، بابر محمود، ذیشان سہیل ملک، محمد علی میاں اور سابق صدر سہیل اشاری کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اچانک لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ وزیر اعظم تاجروں کو کم از کم 2 دن کاروبار کی اجازت دیں۔ لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو مہربانی کر کے ناراض نہ کیا جائے۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بزنس کمیونٹی کو بات کو مانا جائے اور 2 دن کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے، 2 دن کھولنے کے لیے، 24 آورس کے لیے۔ بزنس کمیونٹی کو لگتا ایسے ہے کیونکہ حکومت کی صفوں میں ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے جو کہ بزنس کمیونٹی کے خلاف ہے۔ تاجر دشمن جو ہے پالیسی بنانے میں وہ حکومت کو ایڈوائز کر رہا ہے۔ حکومت کو کچھ سمجھ نہیں حکومت کو آ رہی کہ یہ جو ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو 2 دن کا بزنس تھا یہ 6 ماہ پہ محیط ہوتا ہے۔ تاجر رہنما بابر محمود نے کہا کہ جمہوری حکومت آمرانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اچانک لاک ڈاؤن کر کے تاجروں پر بجلی گرا دی گئی۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور تاجر برادری کے مابین خلیج کو اچانک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر کے مزید وسیع کر دیا۔ 4 صوبوں کا جو کورونا ہے یہ خالی پنجاب پہ کیوں حملہ کرنے آ گئے ہیں؟ دوسرا، اب بھی ہم اس چیز کا کچھ نہیں بگڑا۔ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ وزیر اعظم پنجاب میں اچانک لاک ڈاؤن کے فیصلے کو معطل کر کے 2 روز کاروبار کی اجازت دیں۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، مویشی منڈیوں میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری نے لبرٹی اور جوہر ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف مارکیٹس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سی سی پی او لاہور کو پولیس کی مزید نفری تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر وزیر قانون کا کہنا تھا کہ حکومت اقدامات سے کورونا وائرس وبا پر کافی حد تک قابو پایا گیا ہے۔
लापरवाही से इजाफा हो सकता है। अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पाइन रोड सेल पॉइंट में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए महकमा सेहत को सैंपल कलेक्शन टीम मौजूद न होने पर चीफ सेक्रेटरी ने बरहमी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि जारी करदा हिदायत पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहर में आटे की सप्लाई मामूल पर आने लगी है, लेकिन शुगर माफिया की सरगर्मियां कम ना हो सकी। चीनी का 50 किलो का थैला 150 से लेकर 200 रुपए महंगा कर दिया गया है, जबकि मार्केट में चीनी 92 से 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहर में शुगर माफिया की सरगर्मियां तेज हो गईं और चीनी की कीमत में इजाफा ना रुक सका। रवा माह चीनी की कीमत में 12 से 13 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। अकबरी मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला 4,450 से लेकर 4,500 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि मार्केट में चीनी 92 से 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी की कीमत में इजाफे पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। यहाँ से पता गया चीनी का, तो चीनी यहाँ पे नहीं है, तो ये हाल है इनका कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी नहीं है और बाहर जो दुकानदार है वो 90 से 92 रुपए किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो लिहाजा इन्हें चाहिए कि सबसे पहले तो अपना यूटिलिटी स्टोर में चीनी वाफर मकदार में कि, और जो बाहर इन्होंने कहा कि हम 70 रुपए किलो में फ़रोख्त करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में चीनी महंगी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी दस्तयाब ही नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए संजीदा इकदामात करे और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। शहर में एक तरफ चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ आटे की फराहमी मामूल पर आने लगी है और शहर में आटे की 80% किल्लत दूर हो चुकी है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की CCPO लाहौर, SP सिविल लाइंस सफ्दर रजा काज़मी और CTO हमाद आबद की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी DSP आतिफ मेराज को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने रात गए बगैर प्रोटोकॉल 3 घंटे मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आज बड़ा एक्शन करते हुए बाज़ अफसरान को मुअत्तल जबकि बाज़ अफसरान को तब्दील कर दिया है और बाज़ अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने थाना मुगलपुरा में सफाई के नाकिस इंतजामात और वहाँ मौजूद लोगों की शिकायत पर बरहमी का इजहार करते हुए DSP मुगलपुरा आतिफ मेराज और SHO थाना मुगलपुरा ताहिर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद और SP सिविल लाइंस सफ्दर रजा काज़मी की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी किया। वज़ीर-ए-आला ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान की कारकर्दगी पर भी नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुबश्शिर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आला ने DG सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार किया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के माली साल 2020-21 के लिए 11 अरब 62 करोड़ 87 लाख से जायद के बजट की मंजूरी दे दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गुज़श्ता माली साल के बजट में 67 करोड़ का खसारा हुआ। रवा साल कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल नहीं है। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। ताहम रवा माली साल में पार्किंग प्लाजों समेत कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल नहीं किया गया। रवा माली साल के बजट का हुजम 11 अरब 62 करोड़ 87 लाख 59 हजार से जायद है। तरक्याती बजट के लिए 2 अरब 99 करोड़ 35 लाख 58 हजार मुख्तस किए गए। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 14 करोड़ 88 लाख 80 हजार रखे गए हैं, जबकि नई तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 84 करोड़ 46 लाख पंजाब म्यूनिसिपल सर्विस प्रोग्राम की स्कीमों के लिए 72 करोड़ रुपए रखे गए हैं। MCL के ज़राए आमदन में से 60 करोड़ जबकि पंजाब हुकूमत से 52 करोड़ की तरक्याती ग्रांट मुतवक्का है। गैर तरक्याती बजट 8 अरब 63 करोड़ 52 लाख मुख्तस किया गया। तनख्वाहों की मद में 2 अरब 32 करोड़ 28 लाख 71 हजार से जायद जबकि 8 हजार से जायद पेंशनर्स के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब को सर्विसेज चार्जेस की मद में 10 करोड़ रुपए फराहम करना होंगे। कोरोना वायरस समेत दीगर वबाई अमराज के लिए 35 करोड़ का रिलीफ फंड, स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए 3 करोड़, कौमी और मजहबी तकरीबात के इनकाद के लिए 8 करोड़ जबकि तशहीरी मुहिम के लिए 6 करोड़ और मुहर्रमुल हराम समेत स्पेशल इवेंट्स के इनकाद के लिए 40 करोड़, गैर मुल्की वफूद की आमद की तकरीबात के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। शहर की सड़कों की मरम्मत और बहाली की स्कीमों के लिए 40 करोड़, सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश के लिए 7 करोड़, शहर की 214 सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 32 करोड़ 50 लाख,
फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत व बहाली के लिए 8 करोड़, कैटल मार्केट्स वगैरह के लिए 44 करोड़, जबकि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 40 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। गाड़ियों और मशीनरी के फ्यूल अखराजात की मद में 14 करोड़, दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के खानदानों की कफालत के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए रखे गए हैं। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत 455 बल्दियाती इदारों की माहाना तरक्याती ग्रांट तो बदस्तूर सुर्ख फीते की नज़र है, लेकिन बल्दियाती इदारों को 2 अरब 76 करोड़ 73 लाख की गैर तरक्याती अखराजात के लिए ग्रांट जारी कर दी गई है। MCL को भी 16 करोड़ 24 लाख से जायद की गैर तरक्याती ग्रांट मिल गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और 455 बल्दियाती इदारों की तरक्याती ग्रांट 29 माह से सुर्ख फीते की नजर है। पंजाब हुकूमत ने MCL समेत बल्दियाती इदारों की PFC शेयर की तरक्याती ग्रांट बदस्तूर बंद कर रखी है। ताहम बल्दियाती इदारों को 2 अरब 74 करोड़ 73 लाख की गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी गई। MCL और बल्दियाती इदारों को गैर तरक्याती ग्रांट माह जुलाई की मद जारी की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की PFC की मद में 90 करोड़ से जायद की तरक्याती ग्रांट जारी नहीं की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 16 करोड़ 2,44,000 गैर तरक्याती अखराजात की मद में जारी किए। महकमा खजाना ने गैर फाल 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 182 म्यूनिसिपल कमेटीज को गैर तरक्याती अखराजात के लिए ग्रांट जारी की। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन, सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पे टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा न करवाने का ये मामला है। सिविल एविएशन हुकाम ने पे टैक्स चालान जमा न करवाने वाली एयरलाइंस, सिफारत खानों, ऑपरेटर्स, सर्विसेज एजेंसी समेत 397 इदारों और कंपनीज को वार्निंग जारी कर दी है। गैर मुल्की एयरलाइन, सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पेड टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा न करवाने पर CAA हुकाम ने एयरलाइंस, इदारों और कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी। डायरेक्टर फाइनेंस CAA शाहिद अली की जानिब से मुतल्लिका नादहिंदा इदारों को मुरासला जारी कर दिया। लिस्ट में 397 एयरलाइन, फ्लाइंग क्लब, सिफारत खाने और एविएशन सर्विसेज शामिल है। लिस्ट में एयरलाइंस में एयर इंडिया, एयर फ्रांस, एयर इंडिया चार्टर, ब्रिटिश एयर, एयर कनाडा, कतर एयर, एमिरेट्स, इत्तेहाद एयर, गल्फ एयर, तुर्किश एयरलाइन, एयर जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन, बहरीन एयर, चाइना एयरलाइन, माल्डो एयर, DHL एविएशन, फ्लाई दुबई, फ्लाई नाज समेत दीगर शामिल हैं। जबकि इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, इराक, जापान, कुवैत, कतर, किर्गिस्तान, नॉर्वे, श्रीलंका, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, रूस, न्यूजीलैंड, जर्मन और स्पेन के सिफारत खाने शामिल हैं। लाहौर फ्लाइंग क्लब, मुल्तान फ्लाइंग क्लब, कराची एरो क्लब, पेशावर फ्लाइंग क्लब, शाहीन फ्लाइंग क्लब, फैसलाबाद, ईदी फाउंडेशन, सीरियन एयर, एयर ब्लू, अस्करी एयर, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत भी लिस्ट में शामिल हैं। CAA की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक इदारों की जानिब से माली साल 2019 और 20 के बिल्स के टैक्सेस, पेमेंट, चालान जमा नहीं करवाए गए। मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि वो माली साल 2019-20 के टैक्सेस, पेमेंट, चालान जल्द अज जल्द जमा करवाएं। जबकि क्रिकेट स्टार मोहम्मद हफीज एक मरतबा फिर से FBI के रडार पर आ चुके हैं। FBI ने क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के खुफिया असासाजात का सुराग लगाकर 2 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया। FBI ने क्रिकेट स्टार मोहम्मद हफीज का इनकम टैक्स ऑडिट करके 2 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्सेस आयद कर दिया है। FBI जराये के मुताबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने साल 2014 में FBI से 8 करोड़ 60 लाख रुपए छुपाए। जराये के मुताबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को साल 2014 का ऑडिट करके 8 करोड़ 60 लाख रुपए छुपाने पर वजाहत के लिए मुतअद्दिद बार मोहलत दी गई। जराये का कहना है कि क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर टैक्स आयद किया गया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने FBI के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। शहर में क्राइम की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। मुलजिमान ने समनाबाद में 10 साल बच्चे की साइकिल भी ना छोड़ी। नन्हे उमर और सुल्तान ने पुलिस अंकल से चोरी होने वाली साइकिल वापस दिलवाने की अपील की है। 10 साल कमसन उमर पुलिस अंकल से चोरी होने वाली साइकिल वापस दिलवाने की अपील कर रहा है। समनाबाद के रहायशी उमर की साइकिल आज बेकरी के बाहर से चोरी हो गई। उमर कोल्ड ड्रिंक लेने आज सुबह घर के करीब बेकरी पर गया था। मैं बेकरी पे गया था जूस पीने, तो जब मैं गया मैंने जूस लिया और मैं वापस आया तो साइकिल नहीं थी। फिर मैंने सबसे पूछा फिर मुझे नहीं मिली। मैं घर आया, मैंने मम्मा पापा को बताया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने बेकरी के बाहर से साइकिल उठाई और फरार हो गए। बाहर साइकिल न होने पर उमर बेचैनी से साइकिल ढूंढता है। साइकिल न मिलने पर उमर आपदीदा हो जाता है। ये लोला था और फिर मैंने छिपाने पर लाया तो ये बानूश हो गया। ठीक है।
तो किस तरह से आपने इसको तसल्ली दी? मैंने उमर से पहले पूछा, उमर क्या हुआ? इसने कहा मेरी साइकिल चोरी हो गई है, तो मैंने उमर को पानी पिलाया और इसे मैंने कह दिया। उमर को उसके वालिद हमायूं ने लॉकडाउन के दौरान 22,000 की साइकिल दिलवाई थी, जो चोरी होने पर घर आकर उमर रो पड़ा। उन्होंने पुलिस अंकल से कहा कि वो चोरी होने वाली हमारी साइकिल वापस दिलाएं और मुल्जमान पकड़ें। कैमरामैन अली शेख के साथ वकास अहमद, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल का मकसद तमाम मसाले की मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम का जज्बा पैदा करना है। मुल्क की तारीख में पहली बार कानूनी तौर पर हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। तमाम मुकद्दस हस्तियों के नामूस की हिफाजत हो सकेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने वफ़द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की हिमायत करते हुए मुबारकबाद पेश की। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। एजाज अहमद चौधरी का कहना है कि सिंध को मौजूदाड़ो बनाने वाले बेशर्मी से टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं। पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वफूद ने एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात की। वफूद से गुफ्तगू करते हुए एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि अली बाबा 40 चोरों का टोला 12 साल से सिंध की आवाम के हुकूक पर डाका डाल रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों के दरमियान कमीशन एजेंट का किरदार अदा कर रहा है। फजलुर रहमान को पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की विफाकी वजीर दाखिला पीर एजाज शाह से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का वजीर दाखिला से उनके भाई हसन अहमद शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर दाखिला से मुलाकात करके उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब ने वजीर दाखिला से भाई की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला हसन अहमद शाह के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम बट, मिर्ज़ा जावेद की NA 124 के लीगी रहनुमा राना इशफाक मरहूम के घर ग्वाल मंडी आमद हुई। लीगी कारकुन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की हदायत पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम बट, मिर्जा जावेद, सिबगतुल्लाह सुल्तान और सैयद गुलाम दस्तगीर शाह NA 124 के सीनियर लीगी रहनुमा राना इशफाक मरहूम के घर पहुंचे और फातह ख्वानी की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि राना इशफाक मरहूम मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुन थे। ये जो वर्कर है हमजा साहब का ख़ानदान है। हमजा साहब जितने दुखी थे मैं आपको अपने अल्फाज में बता नहीं सकता, और राना इशफाक साहब के ख़ानदान को आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत समझे कि राना इशफाक चला गया, ये सब राना इशफाक खड़े हैं। वो एक पार्टी की आन बान और शान जैसा वर्कर था। वो मैं समझता हूँ उसके साथ उसका एक हमजोली था, वो उस्मान है। उस्मान अकेला हो गया और बाकी जितने वर्कर हैं ये एक शान है मुस्लिम लीग नून की। हम सब की जिन जान था और एक वो जद्दोजहद की दास्तान है। मैं समझता हूँ एक आइडियल सियासी कारकुन था, अपनी सारी ज़िंदगी जमात के लिए वक्फ कर दी। कोई भी बुरे से बुरा दौर है, तहरीक निजात है और उस पर तहरीक बहालिया जमहूरियत में जो मरहुमा बेगम कलसूम साहब ने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया तो वो पेश था। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि राना अशफाक मरहूम जैसे कारकुनान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। पार्टी में जो है वो बहुत कम होते हैं और इस तरह के लोग दोबारा आना भी बड़ा मुश्किल होते हैं। उनके गम में बराबर के शरीक हैं। कल हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब इस चीज़ का पता चला तो मैंने ज़िंदगी में उनको कभी इतना दुखी नहीं देखा। जब इस मौके पर लीगी रहनुमा शाहिद प्यारा, शेख शाहिद इकबाल, सैयद दिलशाद शाह, आसिम मुस्तफ़ा, रहीम खान, तारिक महमूद, हारून भुट्टा, शाहिद गौरी, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। बज़्म फ़िदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा काउंसिल और प्राइवेट काउंसिल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दीनी और समाजी शख्सियत मंजूर अहमद गौरी के इरसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बज़्म फ़िदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा काउंसिल और प्राइवेट काउंसिल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दीनी और समाजी शख्सियत मंजूर अहमद गौरी के इरसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब में पीर दीवान अहमद मसूद चिश्ती, मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, हाफिज़ आमिर मुग़ल, कर्नल नासिर, कैप्टन वकार, कर्नल कमरुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद शहजाद, हाजी अब्बास समेत सियासी और समाजी शख्सियात और उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
वज़ीर लाइव स्टॉक पंजाब सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक की लखुडेर मवेशी मंडी आमद हुई। वज़ीर लाइव स्टॉक ने मंडी में इंतजामात का जायजा लिया और मास्क तकसीम किए। कहते हैं मंडियों के औकात बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लोग मुल्क की एंट्रियां और गोश्त खा गए, अब इनका इलाज कर रहे हैं। वज़ीर लाइव स्टॉक पंजाब सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक ने लखोडेर मवेशी मंडी का दौरा किया और मंडी में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मंडी में लगाए गए लाइव स्टॉक के कैंप पर मौजूद अफसरान ने वज़ीर लाइव स्टॉक पंजाब को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक ने मंडी में व्यापारियों और खरीदारों में मास्क तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत 100 से ज़ायद मंडियाँ पंजाब में कायम की गई हैं। हम डंडे मारकर या सख्ती से SOPs पर अमल नहीं करवा सकते। लोगों को खुद अपना ख्याल करना चाहिए। मंडियों में बुजुर्गों और बच्चों को ना लाएं। पाकिस्तान में खालों की कीमतें गुज़श्ता चंद सालों में कम हुई हैं। अनाड़ी कसाइयों की वजह से खालें तबाह हो जाती हैं। साबका द्वार में लोग मुल्क की अंतड़ियां खालें खा गए, इनका इलाज कर रहे हैं। जो लोग मुल्क की आंतड़ियां, खालें, गुर्दे, दिल, गोश्त खा पी गए और लूट गए, उन्होंने यकीनन ऐसा कैंसर छोड़ा है जिसकी करेक्शन के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और लोग एक बहुत मुश्किल और बहुत एक तकलीफ दे अजाब से गुजर रहे हैं। आई विश एंड होप कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या जो आने वाली सरकारें हैं वो इस कैंसर का इलाज करें ताकि हमारा मुल्क एक सेहतमंद माशरे और एक सेहतमंद मुल्क की तरह आगे की तरफ बढ़ सके। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक का कहना था कि लोगों की सहूलत के लिए मंडियों के औकात-ए-कार में इजाफा किया जाएगा। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वक़ार गुमन, लाहौर। और वज़ीर सनअत असलम इकबाल भी एक्शन में आ चुके हैं। नाकिस कारकर्दगी पर टाउनशिप बाजार के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को उसके महकमे में वापस भिजवा दिया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने टाउनशिप में बाजार का दौरा किया। आटा और दीगर अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने बाज़ दुकानों पर रेट लिस्ट आवेजा न होने पर इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान की सख्त सरजनिश करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को वापस महकमे में भिजवाने के अहकामात दिए। सूबाई वजीर ने टाउनशिप में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली रखने पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। असलम इकबाल का कहना था कि अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और मुकर्रर नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कोताही या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने हदायत जारी की कि तमाम दुकानों पर रेट लिस्टें नुमाया जगह पर आवेजा होनी चाहिए। कजाफी बट, सिटी 42। आसमान पर उड़ती पतंग तो देखी होगी, मगर हम मिलवा रहे हैं आपको एक LDA सिटी मवेशी मंडी में मौजूद सहराई जहाज पतंग से, जो अपने रंग की वजह से सबसे मुनफरिद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।